Good morning to everyone. This is the sum we will be doing in today's lecture. Following is the summary balance sheet of Mrs. Sonam Limited as on 31st March 2018. Summary balance sheet as on 31st March 2018. 10% preference shares of rupees 10 each 5 lakh. Equity shares of 10 each 10 lakh. If 5 lakh is the preference share capital, divide by 10, we get 50,000 shares. Same way, equity shares is also of 10, capital is also 10 lakh, and per share face value of the share is 10 rupees. So 10 lakh divide by 1, sorry, 10 lakh divide by 10, we get 1 lakh shares. Equity shares is 1 lakh and preference shares is 50,000. 10% debentures 2 lakh, creditors 2 lakh, other liabilities we have 7 lakh, goodwill 2 lakh, land and building 10 lakhs, investment 5 lakh, stock 4 lakh, publicity, campaign expense and preliminary expense, both of them are fictitious assets. Publicity, campaign expense and preliminary expense, both are preliminary, this one are fictitious assets. Now, the scheme of reconstruction approved by the authority was as under: each equity share will be written down from rupees 10 to rupees 6 fully paid up. See, one more thing, in this sum, they have asked us to prepare two things. You are required to prepare capital reduction account and balance sheet of Sonam Limited after reconstruction. So they have not asked us to prepare journal entries in exam also. Students, please understand, you have to see what have they asked you to prepare, what is asked in the question to prepare. If journal entries is not asked, then if you prepare journal entry, you will not get any marks. You will get marks for only what is asked to prepare. So here in this sum, the marks allocation will be for capital reduction account and balance sheet. Even if you prepare journal entries, you will not get any marks for it. Then it will be your waste. You will be wasting your time in preparing journal entries when you don't get any marks for it. Correct. So it is better we avoid preparing journal entries, because they have not asked us to prepare journal entries in this sum. They have asked us to prepare only capital reduction account and balance sheet. So let us start. In the books of Sonam Limited, we have to prepare capital reduction account. Now, I assume all of you know that capital reduction is a nominal account. So nominal account means debit all expenses and losses, credit all incomes and gain. So if there is a loss or expense, capital reduction will be debited. If there is profit, capital reduction will be credited. So हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है, कुछ लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में आएगा, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में. So with that we can start, and one more thing we have to prepare. After preparing this, we will be preparing Sonam Limited balance sheet as on, what is the date?
31st March 2018. And we always prepare after reconstruction balance sheet as and reduce. We add the word and reduced. Particular note to account and rupees. So let us start from the first entry. Each equity share will be written down from rupees 10 to rupees 6 fully paid up. Means what? We can have a working note wherein we can do the working. So here what will happen? Equity share. There are how many equity share? 10 lakh divided by 10. We have 1 lakh equity shares. Correct? 1 lakh equity shares from 10 rupees will become of 6 rupees. Old shares were of 10 rupees and new shares will be of 6 rupees. Now tell me how much profit it is. How much profit it is? 1 lakh इक्विटी शेयर है, वो कैसे पता चला? 10 lakh को डिवाइड बाय 10 किया तो वी गेट 1 lakh इक्विटी शेयर्स. बट नाउ फ्रॉम 10 रुपीज इट हैज बिकम 6 रुपीज. सो क्या होगा? ओल्ड शेयर कैंसल हो गया. अब न्यू शेयर 6 रुपीज का है तो ये हो जाएगा 6 लाख का. ये हो जाएगा कितने का? इक्विटी शेयर्स हो जाएगा 6 लाख का. तो कितने का प्रॉफिट हुआ कंपनी को? How much profit? Earlier they had to pay 10 lakh. Now the shares are getting reduced to 6 rupees. So profit is of how much? Profit is of 1 lakh into 4 rupees. So profit is of 4 lakh. Getting my point? यहाँ पे क्या हो गया? जो इक्विटी शेयर्स है वो 10 रुपीज से 6 रुपीज हो गया. सो जो 10 रुपीज का शेयर था वो कैंसल होके 6 रुपीज का शेयर्स क्रिएट हो गया. दैट मीन्स अर्लियर कंपनी हैड टू पे 10 रुपीज, हैड टू रीपे 10 रुपीज टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. नाउ द शेयर हैज बिकम ऑफ 6 रुपीज. सो 4 रुपीज का फायदा हुआ. 4 and then profit means, see, capital reduction is a nominal account. लॉस होगा तो डेबिट करेंगे, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट करेंगे. तो सबसे पहले वी विल राइट क्या कम हो रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल. कितना? 1 लाख शेयर्स है, 4 रुपीज वैल्यू कम हो रहा है तो इट विल कम टू हाउ मच? 4 lakhs. एनी कंफ्यूजन हियर? See, loss to it will be in the debit side, profit to it will be in the credit side of capital reduction. Now next we will see 10%, each 10% preference shares to be written down from rupees 10 to rupees 8 fully paid up. So again, preference share 5 lakh का है and one share is of 10 rupees. So 5 lakh divided by 10, we will get number of share is how much? The second one, 5 lakh divided by 10, we get 50,000 preference shares. We get 50,000 preference shares. प्रेफरेंस शेयर्स हमें 50,000 मिलता है एंड 10 रुपीज से 8 रुपीज हो गया. 10 रुपीज से 8 रुपीज हो गया तो व्हाट इज द न्यू वैल्यू? 10 रुपीज से 8 रुपीज हो गया. सो डू 50,000 इंटू 8. हाउ मच विल बी द वैल्यू ऑफ शेयर्स? 4 लाख हो जाएगा. सो प्रॉफिट कितना हुआ?
पहले it was 10 rupees share, so profit is how much? 50,000. 10 rupees से 8 rupees हो गया, so it is 2 rupees profit, it becomes 1 lakh. So again profit है, तो यहाँ पे profit मतलब credit side by preference share capital. How much? 50,000 shares into 2 rupees का profit. So this becomes 1 lakh. Next what they have told that these preference share, ये जो 4 lakh का preference share है, इसको कन्वर्ट करेंगे into 12% preference shares of ₹2 each and remaining into इक्विटी शेयर्स. तो क्या होगा, ये प्रेफरेंस शेयर्स को दो पार्ट्स में कन्वर्ट करने वाले, 2 रुपीज एंड 6 रुपीज. सर टोटल इट इज 8 रुपीज ना, टोटल 8 रुपीज है एक प्रेफरेंस शेयर का. तो इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करने वाले, एक दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 2 रुपीज ईच एंड रिमेनिंग इट विल बी इक्विटी शेयर्स ऑफ 6 रुपीज ईच. तो ऐसे करके हमें इसको कन्वर्ट करना है, बट उसमें कोई प्रॉफिट लॉस इज नॉट देयर. तो दिस वी विल डू व्हेन वी विल बी डूइंग आवर बैलेंस शीट, बिकॉज 8 रुपीज में कन्वर्ट हो गया. नाउ दिस 8 रुपीज विल बी डिवाइडेड इनटू 2 things. One is 2 rupees का preference share, 10 से 12% preference share, so this 10% preference share will get cancelled, and instead of 10% we will have 12% preference shares of 2 rupees, and remaining will be our equity shares of 6 rupees. Remaining will be our equity shares of 6 rupees. So next one, 10% debenture holders agreed to waive 20% of their rights. So 10% debentures कितने का है? 2 लाख का है. They are ready to waive. Waive means sacrifice, give away 20% of their rights. Debenture holders 2 लाख का जो डिबेंचर होल्डर्स है, दे सेड दे आर रेडी टू फॉरगो 20% ऑफ देयर राइट्स. तो 2 लाख का 20% निकालो, हाउ मच इज इट कमिंग टू? 2 लाख का 20% इज इक्वल टू 40,000. सो डिबेंचर होल्डर्स आर रेडी टू फॉरगो 20% ऑफ देयर राइट्स. तो 20% कम होगा डिबेंचर, सो इज इट अ प्रॉफिट और लॉस फॉर द कंपनी? लाइबिलिटी कम हो जाएगा. टेल मी, व्हेन 10% डिबेंचर्स 20% से कम होगा, सो इट विल बी प्रॉफिट और लॉस फॉर द कंपनी? जहाँ पे 2 लाख पे करना था, अभी 40,000 कम, लाइबिलिटी रिड्यूस होना, विल बी प्रॉफिट. इट विल बी प्रॉफिट. सो वी विल प्रॉफिट मतलब क्रेडिट साइड में आएगा by 10% debentures. by 10% debentures कितना? 2 लाख का है एंड 20% कम हो रहा है, सो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच? कितना प्रॉफिट हुआ? 40,000 का प्रॉफिट हुआ. नेक्स्ट वन, असेट का नया वैल्यू बताया है. So land and building new value is 12 lakh. Old value was 10 lakh. Now tell me, is it a profit or a loss? New value of land and building is 12 lakh. Old value was 10 lakh. Asset का value increase हो गया. Will it be a profit or a loss? Asset का value increase होना. Is it profit or a loss? Earlier it was 10 lakh. Now it has become 12 lakh. Yes, it is a profit. So कितने का प्रॉफिट है? 2 लाख का प्रॉफिट है. सो यहाँ पे प्रॉफिट मीन्स क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन बाई लैंड एंड बिल्डिंग. बाई लैंड एंड बिल्डिंग हाउ मच प्रॉफिट? 12 हो गया 10 से, सो इट्स अ प्रॉफिट ऑफ
2 lakhs. How we can show here? 12 lakh minus 10 lakhs. So it's a profit of 2 lakhs. Again, let us see stock to be reduced by 20%. स्टॉक 4 लाख का है, रिड्यूस मतलब कम होना. अब बताओ स्टॉक इज अ असेट, उसको कम करना है, उसका वैल्यू रिड्यूस करना है. सो विल इट बी अ प्रॉफिट और अ लॉस? स्टॉक इज अ असेट, उसका वैल्यू कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, सो इट विल बी अ लॉस. लॉस है तो हम लोग क्या करते हैं? लॉस मीन्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. लॉस हुआ तो इधर लिखना पड़ेगा टू स्टॉक अकाउंट हाउ मच लॉस? 4 लाख. सॉरी, कितने का स्टॉक है? स्टॉक इज अ 4 लाख और 20% रिड्यूस हो रहे. सो 4 लाख into 20%. So this will be how much? This will be 80,000 loss. Next one, creditors due are settled. क्रेडिटर को सेटल करने वाले हैं. 30% इमीडिएट पेमेंट, 50% paid by issue of 10% डिबेंचर एंड 20% कैंसल. हम लोग को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कितना लाइबिलिटी कैंसल होगा उतना नहीं पे करेंगे. नहीं पे करेंगे तो कंपनी के लिए ये प्रॉफिट है. एंड दे हैव आस्क्ड अस टू थिंग्स. वन, वी हैव टू प्रिपेयर capital reduction, and second we'll have to prepare balance sheet. So let us do this working note. Let us do this working note. Let us see creditors कितने का है. Creditors is of 2 lakh. Creditors is of 2 lakh. Let us find out the amounts. Creditors is rupees 2 lakhs. इसमें कितना पे करेंगे? पे करेंगे तो paid is how much? 30%. So how much will be 30%? 2 lakh का 30%. 2 lakh का 30% is how much? 2 lakh का 30% is 60,000. This we will pay. So cash bank money will go out. And remaining क्या करने वाले हैं? Remaining 50% का डिबेंचर इशू होगा. इशू 10% डिबेंचर्स फॉर हाउ मच अमाउंट? 2 lakh का 50%, which is how much? Rupees 1 lakh. 50% is 1 lakh. Correct. And remaining जो balance है that is 20% cancelled. Cancelled मतलब profit ना. Cancelled is 20%. That means this is profit. Liability cancel होना is profit. Liability cancel होना is profit. So how much? Cancelled 20% is profit. So 2 lakh का कितना परसेंट? 20% is how much? 40,000. Capital means it will come in the cancel. Profit means it will come in the capital reduction. So we got capital reduction में profit है. So क्या cancel हो रहा है? Creditors. So we'll write by creditors. कितना? 2 lakh का 20%, which is coming to how much? 40,000. Now इसके बाद they say all tangible and fictitious assets to be written off. What tangible asset we have? We have goodwill. Sorry, it is not tangible. Huh? There is a mistake here. Intangible.
all intangible and fictitious asset. Tangible asset, fixed asset means land and building. Here there was a mistake in the question. It was intangible fixed asset. All intangible and fictitious assets to be written off. So intangible asset में सबसे पहले क्या, intangible is only goodwill, correct? Only one intangible asset we have, that is goodwill. Then what fictitious assets we have? We have two fictitious assets, पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंस एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. इसको राइट ऑफ करेंगे, कैंसल करेंगे. टेल मी, ये तीनों असेट है. असेट को कैंसल करना मीन्स प्रॉफिट और लॉस. असेट को कैंसल करना मीन्स प्रॉफिट और लॉस. असेट को कैंसल करेंगे तो इट विल बी लॉस. लॉस मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा to goodwill. How much is the amount? 2 lakhs. Goodwill का amount है 2 lakhs. Publicity campaign 4 lakh. Preliminary expense 1 lakh. So goodwill is 2 lakh given. इसके बाद to publicity campaign expense. This is fictitious asset. इसको भी cancel करना है. Campaign expenses, this is how much? 4 lakh. And here it is 2 preliminary expense. We can see that in this sum there is no profit and loss account. Means यहाँ पे ये कंपनी को ना, क्योंकि हमने लाइबिलिटी साइड में भी कोई रिजर्व नहीं देखा एंड असेट साइड में भी लॉस नहीं है. So there is no loss, matlab there is fictitious asset, but there is not profit and loss account debit balance. So there is no profit, no loss situation. Here we can see, but there are many accumulated losses, that is fictitious assets are there. ये 1 लाख का है, so ये भी कर दिया. इसके बाद what is that? इसके बाद दे से लास्ट वन, बट यहाँ पे देर इज नो प्रॉफिट और लॉस. 10,000 लास्ट एंट्री में देर विल नॉट बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बिकॉज ये क्या है, 10,000 इक्विटी शेयर 6 रुपीज का वेट इशूड टू पब्लिक फॉर कैश. सो हियर व्हाट विल बी द एंट्री, क्या होगा, इक्विटी शेयर मार्केट में सेल किया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट. कितना इक्विटी शेयर, 10,000 into 6 rupees, that is coming to 60,000. This is for the cash requirement to public में इशू किया शेयर्स. कैश बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 to what will get created, equity share capital account. This is just for the working note sake कि हमने ये एंट्री पास किया दिखाने के लिए कि यहाँ पे तो कुछ भी कैपिटल रिडक्शन नहीं आएगा, बिकॉज शेयर्स वेर इशूड एंड मनी वॉज कलेक्टेड. शेयर 10,000 शेयर्स ऑफ 6 रुपीज वॉज इशूड, तो लाइबिलिटी क्रिएट हुआ एंड पब्लिक में इशू किया फॉर कैश, तो मनी केम इन. सो दिस इज द एंट्री, देयर इज नो प्रॉफिट लॉस इन्वॉल्व. तो बस इतना ही है, दैट वाज द लास्ट एंट्री. सी वेदर कैपिटल रिजर्व आ रहा है, टैली हो रहा है, व्हाट इज, टेक द टोटल, सी व्हाट यू गेट, 80,000 प्लस 2 lakh प्लस 4 lakh plus 1 lakh, we are getting 7,80,000 here. Same way, go to the credit side, उसका भी टोटल निकालो, 4 lakh plus 1 lakh plus 40,000 plus 2 lakh plus 40,000, 7,80,000. So capital reduction account is getting tallied. There is no difference. Capital reduction account is getting tallied. There is no difference here. Now
नेक्स्ट वन हमें बैलेंस शीट भी पूछा है. दे हैव ऑल्सो आस्क्ड अस टू प्रिपेयर बैलेंस शीट. करेक्ट. बैलेंस शीट ऑल्सो हैज बीन आस्क्ड. सो बैलेंस शीट का के लिए सबसे पहले वी विल हैव टू राइट इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज. करेक्ट. We will have to write equity and liabilities. Sorry, equity and liabilities. इसमें what will come? Shareholders fund. Equity means shareholders fund. Shareholders fund में आता है share capital and reserves and surplus. But in the question there is no reserve. जहाँ पे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया जो कंपनी में, वो कंपनी में रिजर्व्स का होना इज लाइक इम्पॉसिबल. दैट इज वेरी रेयर कि उसमें कोई रिजर्व्स हो. जो कंपनी को ईयर बाय ईयर लॉसेस हो रहा है, जहाँ पे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का स्कीम पास हो, वो कंपनी में रिजर्व्स होना इज वेरी वेरी रेयर सिचुएशन. तो यहाँ पे कैन यू सी एनी रिजर्व्स इन द बैलेंस शीट? Can you see any reserves in the balance sheet? Is there any reserves? Capital, debenture, creditor, other liability. There is no reserves. So, सबसे पहले तो let us go to note number 1. Let us go to note number 1 and find out the share capital. Note 1, share capital. तो शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स कितना है वो हमें समझना है. तो हमारा पहला वर्किंग नोट में हमने इक्विटी शेयर्स देखा था, 1 लाख शेयर्स था एंड 1 लाख शेयर्स था 6 रुपीज का. इट वाज 6 लाख. तो स्टार्टिंग में 1 लाख शेयर्स 6 लाख. एंड यहाँ पे देखो हमारा ये एंट्री अभी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. हमने क्या किया, हमने जो 10% प्रेफरेंस शेयर 8 रुपीज़ का हो गया हियर, 10% प्रेफरेंस शेयर जो 8 रुपीज़ का हो गया, 50,000 प्रेफरेंस शेयर इंटू 8, 4 लाख. इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 रुपीज़ के लिए प्रेफरेंस शेयर्स एंड 6 रुपीज़ के लिए इक्विटी शेयर्स. मीन्स ये जो 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, इसका 8 रुपीज़ जो था, दैट इज यहाँ पे हमें 2 पार्ट्स किया. हमने इसका हमने 2 पार्ट्स किया. दैट इज 50,000 इंटू 2 के लिए, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज इक्वल टू 1 लाख. उसके लिए हमने कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर? 12% प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया. 12% प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया. और रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू 6. ये 8 रुपीज़ को हमने, चाहे तो मैं सबको बोल से हटा देती हूँ फॉर सम टाइम. एंड देखो यहाँ पे ये जो 8 रुपीज़ है, 50,000 इंटू 8, 50,000 और 8 रुपीज़, 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 8 रुपीज़, उसको हमने, वो 8 रुपीज़ को हमने क्या किया, हमने वो 8 रुपीज़ को 6 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ में डिवाइड किया. दैट 8 रुपीज़ वी स्प्लिटेड. दैट 50,000 इंटू 8 को हमने स्प्लिट किया 50,000 इंटू 2 रुपीज़ के लिए 12% प्रेफरेंस शेयर एंड 6 रुपीज़ विच इज़ हाउ मच? 3 lakhs ना. 3 lakhs के लिए हमने इशू किया इक्विटी शेयर कैपिटल. सो हियर दे हैव टोल्ड, इसका एंट्री अगर पास करना होता, डू यू वांट मी टू प्रिपेयर पास द एंट्री फॉर इट? तो ये जो 10% प्रेफरेंस शेयर्स है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है. वैसे तो इन दिस क्वेश्चन एंट्री इज नॉट आस्क्ड, बट जस्ट फॉर यू आई एम शोइंग. जो 50,000 इंटू 8 था,
वो कैंसल हो गया, 4 लाख का वो कैंसल हो गया एंड बदले में क्रिएट हुआ 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विच इज 50,000 इंटू 2 हमने स्प्लिट किया है विच इज कमिंग टू 1 लाख एंड रिमेनिंग जो है उसके लिए हमने इक्विटी शेयर कैपिटल क्रिएट किया विच इज हाउ मच 50,000 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 3 lakhs। मतलब यहाँ पे हमने ये एंट्री में क्या किया, प्रेफरेंस शेयर जो 10% प्रेफरेंस शेयर था उसके बदले में 10% जो प्रेफरेंस शेयर था उसके बदले में 12% प्रेफरेंस शेयर क्रिएट किया एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। सो यहाँ पे अगर इक्विटी शेयर वी विल काउंट 1 लाख इक्विटी शेयर, हियर इट इज 50,000 इक्विटी शेयर, हियर इट इज 50,000 इक्विटी शेयर, 1,50,000 हो गया। फिर हमने और कितना शेयर इशू किया इक्विटी शेयर, 10,000, कितना हो गया 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 10,000, हाउ मच इट इज, कितना टोटल शेयर्स 1 लाख प्लस जो पहले से था, फिर 50,000 प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट किया प्लस 10,000 पब्लिक में सेल किया, तो सबको ऐड करके हाउ मच शेयर्स वी हैव 1,60,000 इक्विटी शेयर्स और 1 शेयर इज ऑफ ₹6 ईच, 1 शेयर इज ऑफ ₹6 ईच। तो उसको करो मल्टीप्लाई, 1,60,000 into 6 you get 9,60,000, you get how much 9,60,000 and we also have preference share 50,000। कैसे पता, देखो जो प्रेफरेंस शेयर था हमारे पास 10%, वो हमने कैंसल करके दो कैटेगरी ऑफ शेयर्स क्रिएट किया, 12% प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। सो हाउ मच प्रेफरेंस शेयर वी हैव 50,000 preference share of 2 each, 2 rupees ka preference share and it is 12%. So we will come here 50,000 12% preference share, 12% preference shares of ₹2 each, which is coming to 1 lakh. So total is how much, 10,60,000. Total is how much, 10,60,000. Our preference, our total share capital is 10,60,000. Reserves and surplus तो है ही नहीं, reserves and surplus is not there, ये कंपनी में रिजर्व्स है ही नहीं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वन बी, वी वांट नॉन करंट लाइबिलिटी। वी विल चेक इन आवर बैलेंस शीट, हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सा था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। व्हाट वी हैव, नॉन करंट लाइबिलिटी में हमारे पास ओनली वन था, 10% डिबेंचर्स। सो 10% डिबेंचर वॉज ऑफ 2 लाख। 10% डिबेंचर कुछ कैंसल हुआ क्या, 10% डिबेंचर 2 लाख से 40,000 कम हुआ, करेक्ट, 2 लाख से 40,000 कम हुआ। और देखो क्रेडिटर्स का एंट्री देखो, क्रेडिटर्स में 10% डिबेंचर हमने इशू भी किया है, 10% डिबेंचर हमने इशू किया मीन्स क्रिएट किया। यहाँ पे ओरिजिनली वी हैड 10% डिबेंचर ऑफ 2 लाख जिसमें से 40,000 वैल्यू कम हुआ एंड यहाँ पे हमने 10% डिबेंचर्स 1 लाख का और क्रिएट भी किया, मीन्स 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख, बट 40,000 कम हो गया है, -40,000। सो गेटिंग माई पॉइंट हियर। तो यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटी में वी हैव लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, what is it, 10%
डिबेंचर्स और इसका कैसा है, if I want to show the working, first it was 2 lakh, फिर 40,000, डिबेंचर होल्डर reduce the claim, देखो 20 यहाँ पे दिया नॉट 40%, 40,000, सी ईयर वेर इज इट, हाँ 10% डिबेंचर होल्डर ने agreed to waive 20% of their rights, which is 20% is 40,000, and creditors को भी हमने 10% debentures दिया 1 lakh का, तो how much it is, plus 1 lakh, which will come to how much, 2,60,000, is it correct, 2,60,000. इसके बाद we will go to C, that is current liabilities. Current liabilities, we will go to current liabilities, go to the question. We have two current liabilities, creditors and other liabilities. What about creditors? Creditors है कि हमने पूरा creditors को settle कर दिया, creditors 30 plus 50 is 80 plus 20 is 100%, क्रेडिटर्स को हमने पूरा कैंसिल कर दिया, 30% को कैश पे किया, 50% को डिबेंचर्स दिया, 20% को कैंसिल कर दिया, इट वाज अ प्रॉफिट, मींस क्रेडिटर्स हमने पूरा सेटल कर दिया, क्रेडिटर्स ड्यू सेटल्ड, क्रेडिटर्स ड्यू settled means creditors nil हो गया, उसको पूरा we have settled, so creditors will not come, but we have other liabilities, of 7 lakh जिसको कुछ भी नहीं हुआ है, so current liabilities में we can write other liabilities, which is how much, which is 7 lakhs. So we will come to this total liability side हो गया. Now next one is assets. assets में भी हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, assets को नॉन करंट असेट एंड करंट असेट. नॉन करंट असेट में सबसे पहले क्या आएगा, नॉन करंट असेट में आएगा प्रॉपर्टी, नॉन करंट असेट में आएगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. तो उसमें लेट अस गो टू द बैलेंस शीट एंड सी व्हाट इज देयर. ये गुडविल इंटेंजिबल तो कैंसिल हो गया, ये दो फिक्टिशियस एसेट भी कैंसिल हो गया. अभी हमारे पास 3 ही एसेट है जो हमें एडजस्ट करना है. देखो इधर लैंड एंड बिल्डिंग इज टैंजिबल, लैंड एंड बिल्डिंग इज टैंजिबल एंड करंट, दिस इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. लैंड एंड बिल्डिंग टैंजिबल में आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते इंटैंजिबल कुछ नहीं है, सो डायरेक्टली हियर वी कैन शो tangible. Tangible में we have land and building. Just to show here how much it is. उसका नया वैल्यू दिया है 12 lakhs, correct. Go to the adjustment and see land and building 12 lakhs. Old value was 10 lakh, new value is 12 lakh. So new balance sheet means we will write the new value 12 lakh. फिर इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं हुआ, इट इज 5 लाख. सो विल शो हियर टैंजिबल हो गया, इनटैंजिबल तो नील है. इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इनटैंजिबल इज नील, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. नेक्स्ट वन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट which is already given in the question. हमने इसको टच भी नहीं किया है, तो it will remain the same 5 lakhs. And then finally we will go to our current assets.
करंट असेट्स में स्टॉक इज देयर, पर स्टॉक को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक को हम इन्वेंट्रीज बोलते हैं. सो विल राइट इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज के बारे में क्या बोला गया है? इन्वेंट्री 4 लाख का था एंड कितना रिड्यूस हुआ? 20%. इन्वेंट्री 4 लाख का था एंड हाउ मच गॉट रिड्यूस? 20%. वी कैन चेक हियर 80,000 कम हुआ है वैल्यू. तो स्टॉक लाइक दिस वी कैन राइट 4 lakh stock minus 80,000, which will be equal to how much? How much? 3,20,000. One more thing, cash and cash equivalent. Cash and cash equivalent. Here, check in the balance sheet. Do we have any cash? बैलेंस शीट में देखो हमारे पास कोई कैश है? हमारे पास कोई कैश नहीं. बट हमने क्रेडिटर्स को यहाँ पे पहले पॉइंट में इधर इधर कुछ कैश का नहीं है, बट इन द क्रेडिटर्स सी वी हैव मेड इमीडिएट पेमेंट. मतलब हमने 30,000 पे किया है, 30% पे किया है. कम टू द क्रेडिटर वर्किंग नोट. कितना पे किया? 2 लाख का 30% इज 60,000. 2 लाख का 30% इज 60,000 पे किया. पे किया करने के लिए हमारे पास पैसे भी होना चाहिए. हमने पे किया 30% ऑफ 2 लाख दैट इज 60,000. बट हमें देखो यहाँ पे फोर्थ एंट्री देखो, व्हेन वी सोल्ड इमीडिएटली वी सोल्ड इक्विटी शेयर्स टू द पब्लिक 10,000 इंटू 6, हमें 60,000 मिला भी. मतलब 60,000 हमने क्रेडिटर्स को कहाँ से पे किया? इक्विटी शेयर्स मार्केट में सेल करके वॉट एवर मनी वी रिसीव्ड, थ्रू दैट मनी वी पेड द क्रेडिटर्स. मीन्स 60,000 हमें वी सोल्ड द इक्विटी शेयर्स. सी देयर वाज एंट्री 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹6 were issued to public for cash. So cash mila 60,000, 10,000 into 6 that we utilized to pay the creditors. Cash bank 60 came and 60 paid. So यहाँ पे cash and cash equivalent 60,000 equity shares को sell करके आया and वो 60,000 we repaid to our creditors. So cash and cash equivalent is nil. Debtors है ही नहीं तो कुछ आएगा ही नहीं. So this, with this we can see whether our balance sheet is tallying. Let us see here, 1 0 miss हो गया. See whether the balance sheet is tallying. 10,60,000 plus 2,60,000 plus 7 lakh is giving us 20,20,000. Here also 12 lakh plus 5 lakh 17 lakh plus 3,20,000 is giving us 20,20,000, and our balance sheet is getting tallied. I will highlight it. Our balance sheet is getting tallied. With this, I end today's lecture. Thank you very much, everyone.